تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو ہے ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق یہ کلہم۔ بتائیے حضور کی ماں کا نام کیا تھا؟ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ۔ اب ان کے جب دیکھیے وہ آپ کو پتا تھا کہ حضور کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، تو جب حضور ان کے شکم میں آئے، واقعہ تب سے سمجھیے، اس وقت جہاں سے وہ گزرتی الحمدللہ ایک بادل ان کو سایہ کرتا، پانی بھرنے جاتی تو پانی آٹومیٹک اوپر آ جاتا اور چاروں طرف ہریالی چھا گئی تھی۔ اب ایک بات ہوئی، اب گھر میں دیکھیے جو اس وقت بیوہ عورتیں تھیں وہ عطر وغیرہ نہیں لگاتی تھی، اب جب ان کی سانس تھی ان کو خوشبو آتی، گھر میں انہیں خوشبو آتی، کیونکہ میلاد کا موسم ہے تو یہ واقعہ تھوڑا بتا دینا ضرور۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنی بہو سے کیسے کہیں، کیونکہ وہ خود جانتی تھی اتنی پرہیزگار سب کچھ ہے۔ تو کافی دن گزر گیا، ایسی مہک جو کسی کا اتنا مہنگا مشک، تو بولے کہاں سے اتنا مہنگا مشک ہے جو لگاتی ہیں۔ اب ان سے رہا نہیں گیا، پوچھنے کے لیے بھی انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنے بہو سے یہ پوچھوں کہ تم عطر لگاتی ہو یا مطلب ساز سنگار کرتی ہو۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے مجھے تو پوچھنے میں حیا آتی ہے، پر آپ یہ کہیں کہ یہ آمنہ جو ہے کون سا عطر لگاتی ہے، جو کیونکہ جہاں سے گزرتی ہے مجھے آس پڑوس والے بھی کہتے ہیں کہ یہ خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے سسر نے پھر پوچھا کہ بیٹی آمنہ یہ بتاؤ کیا تم عطر لگاتی ہو؟ اور وہ ان کے آنسو جاری ہو گئے، بولے جب سے میرے شوہر فوت ہوئے میں نے کوئی ساز سنگار کبھی نہیں کیا۔ یہ میں آپ تو صرف عطر کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو ایسی ایسی چیزیں ایسی سب میں دیکھ رہی ہوں، واقعات ایسے معجزے میرے ساتھ ہو رہے ہیں کہ میں خود بالکل تعجب میں کہ یہ سب کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں جہاں سے گزرتی ہوں بادل مجھے سایہ کرتا ہے، پانی لینے جاتی ہوں تو پانی بالکل، سب عورتیں کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلا کرو تاکہ پانی، اور بولے جہاں پہ گزرتی ہوں جہاں پہ سوکھا ہوتا ہے وہاں ہریالی چھا جاتی ہے، جہاں بکریاں جو کچھ ہوتی ہیں کہ جن کے تھن ایک دم سوکھے وہ بھر جاتے ہیں، اور جہاں پر مطلب سوکھا ہے جہاں پہ کھجور نہیں وہاں پہ کھجوریں لگ جاتی ہیں، جہاں پہ میں سایہ لیتی ہوں، بولے ہر طرف رونق چھا جاتی ہے، ہر طرف ہریالی بھری۔ اور ہر رات مجھے دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی سب مبارکباد دینے انہیں ہر مہینے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہو آمینہ، مبارک ہو۔ اور آپ یقین مانیں گے، بولے میں نے دیکھا کہ تارے سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بے شک۔ بولے یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں، میں بالکل خلق نہیں، تو ان کے آنکھ سے آنسو نکل آئے، بولے یہ دیکھیں یہ سب واقعات۔ اور آپ یقین مانیں گے جب حضور پیدا ہوئے اس وقت، دیکھیے لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ کتنی گندگی، ماشاءاللہ بالکل پاک و صاف وہ پیدا ہوئے، ان کی سنت بھی ہوئی تھی، اور پیدا ہوتے ہی حضور سجدے میں چلے گئے، اپنی ربی امتی کہتے ہوئے وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں دیکھا فرشتوں کی بڑی جماعت، چاند ستارے موتی اتنے ملائک جیسے چاروں طرف اجالا، اتنی رونق، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک ملائک نے اس طرح سے پردہ کیا اور حضور ان کے نظروں سے غائب ہو گئے۔ جو کہتے ہیں معراج پر گئے، حضور پیدا ہوتے ہی انہوں نے ساتوں آسمانوں پہ حاضر، حضور کو اپنی زندگی میں 9 بار معراج حاصل ہوئی، جو ہم لوگ ایک ہی کو جانتے ہیں، تو جا کر اسی وقت ہر چیز ساتوں آسمان تک پورا حضور سب منتظر تھے، پوری کائنات وہ پورا گھوم اسی وقت، اور وہ ڈر گئی تھی کہ میرا بچہ ہوتے ہی کہاں چلا گیا۔ اور اس وقت ان کے پاس دیکھیے حضرت سارہ، حضرت حاضرہ، مطلب جو نیک بیویاں تھیں سب ان کے اس وقت ان کے ولادت کے وقت تشریف لائی تھی۔ تو سوچو ہمارے حضور جب آئے
तो उस वक्त मिलाद तो पूरी दुनिया पूरे आलम ने मनाई, बेशक। तो हम मना रहे हैं तो इसमें एतराज क्यों? तो इस पर देखिए जिसकी मतलब तारीफ पूरे जहान ने की, हम तो उस लायक भी नहीं कि एक लफ्ज उनके बाद। तो पैदा हुए तो काबा भी मतलब झुका और वो उस टाइम पे अब्दुल्ला मतलब उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब लेकर काबा में ही थे, और जब वो देख रहे हैं कि काबा इस तरफ क्यों झुक रहा है, समझ उनको में आया? मालूम नहीं था कि हमारे पोता पैदा हुआ है। पहले मतलब मुकद्दस पे वहाँ पर सजदा किया जाता था, समझ तो में? वो मतलब वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसा हुआ। तो वहाँ से दौड़ते हुए, उनका नाम नहीं आ रहा, आए और वो बताए कि आपके घर में पैदा हुआ। काबा तक उनको सजदा किया, तब सोचो कि काबा तो काबे का काबा देगी। तो सोचो हमारे हुजूर की जो फजीलत है, जो कहते हैं ना उनको 40 साल के बाद पैगंबरी हासिल हुई, नहीं, पहले दिन से ये तो दुनिया उन्होंने भी बताने जाहिर के लिए। किया, उन्होंने जाहिर किया, दुनिया भी लेकिन वो बताने के लिए। नूर आला नूर है, उन्हीं के सदके में पूरी कायनात बनी। देखिए एक बार एक औरत थी, अभी वाकया सुनो कि किस तरह से अगर वो किसी चीज को छू भी लेते थे तो किस सालों तक किस तरह से। एक औरत थी, अब वो सफर पे निकले थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, तो रास्ते में उन्हें प्यास की शिद्दत हुई, काफी सफर हुआ था, तो वहां पर एक बूढ़ी बिल्कुल मतलब हड्डी का ढांचा थी ऐसी बकरी थी। अब उसी घर पे हुजूर ने कयाम किया और कहने लगे, तो कहा कि कुछ जाके देखो कुछ पानी वगैरह पीने के लिए। जब अंदर गए तो वहाँ पे सब मतलब उनके पास पूरा रेवड़ी था, वो लेके गए थे, और ये तो बिल्कुल बेहाल थी तो जा भी नहीं सकती थी, तो उसे रख दिया। तो उन्हें कहा कि देखो यहाँ पे आप कुछ पानी वगैरह पीने के लिए है, तो बोले ये बूढ़ी सी बकरी है और तो सारी चीज़ें मेरे घर में कुछ है नहीं, मेरे शौहर बकरियाँ लेकर जंगल में गए हैं, अब आएंगे तभी कुछ हो सकता है। वो पहचानती नहीं थी कि कौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो बूढ़ी बकरी कोई मेरे सामने गया, हुजूर ने फरमाया उसी को लिया। हुजूर ने सिर्फ उसके ऊपर से हाथ फेरा, वो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और उसके थन बिल्कुल दूध से भर गए। सुभान तो अल्लाह, हुजूर ने कहा एक बर्तन ले आओ, तो बर्तन ले आए और जब धोना शुरू किया उसके घर के जितने बर्तन थे सब भर। सुभान अल्लाह, जितने सुभान बर्तन थे अल्लाह। सारे बर्तन अड़ोसी पड़ोसी के बर्तन ले आए, पूरे भर गए, और जितने लोगों ने भी नोश फरमाया कमी नहीं हुई। उसके बाद अब उसका जब शौहर आया तो घर में खुशबू महसूस की, कितनी खुशबू कैसे आ रही। तो उन्होंने क्या कहा, अब वो जानती तो नहीं थी कौन है, तो कहने लगे एक बरकत वाले आए थे, एक बरकत वाले नूरानी हस्ती आई थी। और बूढ़ी थी, बोली मैं नहीं जानती वो कौन थे, लेकिन वो बरकत वाले आए थे, उन्होंने जैसे ही छुआ वैसे ही देखिए मेरे घर पूरा गुलजार हो गया, बरकतें नाजिल हो गई हैं। और देखिए ये जो बूढ़ी बकरी जो मरने को पड़ी थी, आज वो देखो किस तरह से तंदुरुस्त। कहा जाता है उसकी 7 पीढ़ियां तक वो बकरी जिंदा रही, सुभान अल्लाह, उसको मौत नहीं, 7 पीढ़ियों तक वो बकरी जिंदा रही और उसी तरह दूध देती रही। सुभान अब वो और आदमी सोचने लगा कि मैं तो उन बरकत वालों से मिलना चाहूंगा कि वो ऐसा कौन बरकत वाला था जिसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बरकतें इतनी रौनकें हासिल हो गई। तो बोले मैं हम नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें तलाश जरूर करेंगे। तो अब उनके शौहर ने अपने बच्चे को साथ में लेकर वो निकल पड़े। जब निकल पड़े साथ जाकर, तो वो मदीने की गलियों में पूछने लगे कि भाई ऐसा ऐसा कौन शख्स है जिसकी इतनी नूरानी शख्सियत है, जिस चीज़ को छूते हैं वो चीज़ में पूरी रहमतें बरकतें भर जाती हैं। तो वहाँ मदीने वाले तो एक एक ज़र्रा उनको पहचानता था। कहने लगे वो देखो वहाँ पे जो काबे से लग के जो बैठे हैं वही। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा और कहा कि आप कौन हैं, तो बोले मैं अना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोले आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी कि आप जिस चीज़ को भी छूते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बरकत वाली होती है। तो वो लोग इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, उसी वक्त उनके पूरे खानदान में कलमा पड़ा और मुसलमान। सुभान अल्लाह, तो हुजूर सुभान जो है ना, अल्लाह। किसी को जबरदस्ती बोलते हैं ना तलवार की नोक पे इस्लाम, तलवार की नोक पे नहीं इस्लाम। हुजूर ने फरमाया जो अपने रिश्तेदारों से कताए ताल्लुक करेगा और कोई अगर आके उनसे माफ़ी मांगे, माजरत करे, उसे माफ़ी न दे, उसे भी मतलब आबे कौसर हासिल नहीं होगा। देखिए हुजूर ने फरमाया जो तुमको तोड़े उनको जोड़ो। हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारी अना परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई। मैं हूँ क्या, मट्टी से बना हूँ, मट्टी में मिल जाने वाला। बेशक। जब देखिए पैदा हुए तो नहा नहीं सका, मरने के बाद भी नहीं नहा सकता हूँ। हमारा मैं है क्या, 4 लोग कंधे पे ले जाके डालेंगे। देखिए पैदा होने के लिए भी मोहताज और मरने के बाद हमारी नमाज पढ़ाने के लिए, पहुंचाने के लिए भी मोहताज। तो हम
देखिए इज्जत और सारा वक़ार सिर्फ अल्लाह के लिए। हमारे लिए हम कुछ है ही नहीं, और जिसने अना पाल ली, मैं पाल लिया ना, तो फिर वो कहीं का ना। देखिए जिसके दिल में जर्रा बराबर भी घमंड तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाए, खुशबू तक नहीं आई, खुशबू भी जन्नत की सूंघ नहीं सकता वो बंदा। तो हमें देखिए हुजूर का मिलाद मनाना है तो हमें उनकी हर सुन्नतों पर अमल करना है। हर सुन्नत अदा करने पर हमें 70 शहीदों का सवाब मिलता है। तो हमें ये चीज़ की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है कि हम हुजूर की हर सुन्नतों पर अमल करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, और इंशाल्लाह एक भी नमाज हमारी कज़ा ना हो। हम सबको अल्लाह फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन, हम रात को अल्लाहुम्मा देर आमीन। तक तो जागते हैं, फजर हमेशा कज़ा होती है। अल्लाह। तो देखिए रात को सोने के वक्त 2 रकात सलातुल माफी पढ़े, और हर औरत घर में सूरह वाक़िया की तिलावत करे, जिससे घर में कभी भी। एक बार हुजूर के एक साहबी के घर में उनके जो बेटे थे, कमाने वाले थे, उनका इंतकाल हो गया, और साहबी किराम तो उनसे आकर उन्होंने कहा कि आपकी बेटियों को जो है हम आके कुछ मदद कर दिया करेंगे कुछ। तो उन्हें वो नागवार हुआ, बोले मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया पढ़ने की ताकीद की, और जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ा जाता है उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। देखिए जो सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ेगा, दिन भर के काम अल्लाह के ज़िम्मे, उसके दिन भर के काम सारे बन जाएंगे। दुआए गुंजुलस पढ़ने की कोशिश करे, सूरह रहमान पढ़ने की कोशिश करे, सूरह मुल्क जो पढ़ेगा, सूरह मुल्क खुद उसकी शफाअत करेगी, और वो सूरह मुल्क लड़ेगी आखिरत के दिन कि अगर तू इस बंदे की शफाअत नहीं करेगा, बेशक तू मुझे कलाम पाक से निकाल दे। तो अल्लाह उनकी भी बात देखिए, क्योंकि अल्लाह सूरह मुल्क को पसंद करता है, और सूरह मुल्क पढ़ने वाला उसकी शफाअत होगी। ये बात तो है दोनों टाइम दोनों टाइम, रात को सोने टाइम पे जरूर सूरह मुल्क पढ़े। सूरह सजदा, हुजूर अपने सूरह सजदा, सूरह यासीन, सूरह मुल्क पढ़ के सोया करते थे। सोने के वक्त 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 1 कलाम पाक, 4 बार अलहम्दु शरीफ, 1 कलाम पाक, और 10 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, 10 बार दुरूद शरीफ। देखिए हर नमाज के बाद 100 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ों का अगर मामूल बने ना, हम आखिरत में सोचेंगे हमारी ये नेकियां यहाँ से कहाँ से इतनी नेकियां आ गई, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये नेकियों का अंबार हमें थोड़े धीरे धीरे, क्योंकि आखिरत की सब तैयारी है। तो हम सब इंशाअल्लाह हम दुआ करें कि अल्लाह हम सब को वहाँ पर हुजूर के हाथों से कौसर का जाम पीने का आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कोशिश करें।